Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well, preparing with a full gist and enthusiasm for the upcoming prelims examination. This is a video session on daily news and editorial analysis dated 20th of November. Through this video session, I'll be covering the important news and editorial both from the Hindu and Indian Express. So this session will give you the complete analysis of the day, covering the important editorial as well. This session is going to helpful all the aspirant who will be appearing for the Civil Services examination, State Public Service Commission examination, and one-day examination conducted by various agencies of Government of India or state governments. So through this video session, we'll look into the important aspects and the coverage that is relevant from the examination perspective. So let's get started. First, I'll give you the highlights of the news, then we'll proceed further with the detailed analysis. So the first news for today is about the role of the governor in legislation. The second news that we'll be discussing is about the personnel that is deployed in Maldives, and Maldives government has come up with the decision to disengage with the part of deployment which is there. So this particular thing has raised concern between India and Maldives, and a review has already been done. Third important news talks about the concern that has come up with the draft broadcasting bill. The expert has raised concern. So we'll see what are the challenges and how the implementation will be proceed further. The second last news talks about the GTRI report that says it's not the right time for rupee to come up with as a hard currency. So what is hard currency? We'll see detail to that, and which are the currencies which is considered as a hard currency. That will be in our discussions. And we'll conclude our session with editorial. You must have seen the thumbnail. This is the main discussion about the planning and how to overcome the challenges of stubble burning, which is a concerning not only for the central government but also for the state government. और दिल्ली और एनसीआर के रीजन में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशंस के लिए स्टबल बर्निंग को जिम्मेवार माना गया. So we'll see the detail to this in the discussion part. Let's get started with a detailed analysis of the news one by one. So the first news is about the role of the governor in legislation. This has again come up in news with the recent tussle ongoing between the Tamil Nadu governor as well as between the Tamil Nadu government. I have already made our discussions to the role of governor, its legislative power in our other daily news and editorial analysis series. You can check out. इस बार की जो डिस्कशन है वो स्पेसिफिकली तमिलनाडु के गवर्नर ने डिसाइड किया है to withhold the 10 building bills which is there, and this has raised concern with the state government. और इसी कंसर्न को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रिमार्क्स दिए हैं जहां इट सेज दैट सीरियस कंसर्न नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है स्पेसिफिकली विथ होल्डिंग द बिल एंड नॉट गिविंग द एसेंट हैज रेज कंसर्न व्हेन इट कम्स टू द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. राइट, सीएफ की अगर बात करें वहां पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो तमिलनाडु के गवर्नर ने withhold किया है बिल को. Which are the bill that has been put on hold? You can see the list. I'm not going the detail of each and every bill one by one. These are the list you can check. Those of you will be appearing for State Public Commission examination. वहाँ पे आप कुछ चीज accordingly quote कर पाएंगे. Now understanding the detail, what is the constitutional provisions? अगर गवर्नर की पावर की बात करें, जो constitutional provisions है, see there is an article which is mentioned everything which is there in law is abided by the constitution. Right? Article 163 है हमारे constitution में. Article 163 which deals with the power of the governor. This has a specific mentions detail about how a governor should function in the state. और गवर्नर को एक्चुअली एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं. यू मस्ट हैव रेड दिस इन द लक्ष्मीकांत. राइट, नाउ देयर सम सर्टेन आर्टिकल्स व्हिच एक्चुअली डील्स विद द पार्ट ऑफ गवर्नर फंक्शनिंग, और वो आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कि गवर्नमेंट की पावर क्या है. सो आर्टिकल 200 स्पेसिफाइड डील्स विद द इशू द गारंटिंग एसेंट्स ऑफ द बिल, and both provisions are read together to determine the contour of the power of the governor with holding the issue. Right? Now specifically article 200 में कॉन्स्टिट्यूशन ने लेट किया है कुछ सर्टेन प्रोविजंस जहाँ पे जब एक बिल पास होती है स्टेट लेजिस्लेशन में वो प्रेजेंट की जाती है गवर्नर के. वंस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली actually passes a bill, suppose a bill that is passed, now this is provided to the governor for its assent. Any bill can only become an act once it is given the assent by the governor. तो उस assent में 4 अल्टरनेटिव हैं गवर्नर के पास. कौन कौन से अल्टरनेटिव है? The first, that he can grant assent to the bill. This is the first normal condition, that the assent is provided and the bill become act.
Now the second, he can withhold his assent subject to certain restrictions. ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसके काफी लिमिटेशंस है. इफ यू वांट टू डिग डाउन डिटेल्स, यू कैन चेक आउट द टेक्स्ट बुक हियर. नाउ रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. अगर बिल में कोई रिकंसिडरेशन की जरूरत है तो वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रीसेंड की जा सकती है, और जो वहाँ की जो असेंबली है वो उसको फिर से रिकंसिडर करेगी विद फर्दर अमेंडमेंट. Now reserve the bill for reconsideration or consideration with the president. यहाँ पे भी certain limitations है. See, this has been in news. तो आप क्या कर सकते हैं prelims examination point of view से, जो गवर्नर के पावर हैं with regards to bill और जो प्रेसिडेंट के पावर हैं with regards to bill, you need to check all of them because this become important for your examination. So make sure you go deep down and do some other research work which is necessary for the examination perspective, और previous year के questions भी आप check कर सकते हैं इस पे. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है? सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली हैज रेज्ड कंसर्न, और कुछ पुराने जजमेंट्स की अगर बात करें, द जजमेंट इज देयर बाय शमशेर सिंह केस इन 1974. ये जजमेंट है 1974 के, जहाँ पे जो गवर्नर के पावर है, वो कहा गया दैट गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज द डिस्क्रिशनरी पावर withholding the assent to the bill when it comes to the state legislature. अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसे पास किया है तो जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो बहुत ज़्यादा गवर्नर के पास नहीं होती है. दिस आर रिक्वायर्ड टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो COM है. नो एवरी स्टेट हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच एक्चुअली आर एडेड बाय द एड एंड एडवाइस, वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को, तो उनके एडवाइस पे ही बिल को पास करने की जरूरत है. कुछ अगर विथ होल्डिंग सिचुएशन बने, I've told you there are certain withholding situation, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल पे होती है, राइट. सो प्राइवेट मेंबर बिल इज देयर वेयर दे कैन विथहोल्ड द एसेंट, और प्राइवेट मेंबर बिल पे यूपीएससी ने ऑलरेडी 2016 या 17 में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. डू चेक इट आउट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पॉलिटी के जरूर प्रैक्टिस करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इस कंडीशन में अगर प्राइवेट मेंबर बिल पेश की गई है तो वहां पे विथहोल्ड की जा सकती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ नॉट दे आर एक्चुअली विलिंग टू डू सो. अगर उनको पास करने का मन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर जो बिल है वो मेंबर फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर अदर देन मिनिस्टर पास की जाती है, राइट. सो दीज आर द चेक एंड बैलेंसेस व्हिच इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Now, in some instances, there would be advice to governor withhold the assent, right? So, according to the constitutional provisions, the things are actually worked out, devised out, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑब्जर्वेशंस दी. Now, if you look at the prescription that was given by the Supreme Court, rather call it a prescription because this is what he said that the Supreme Court, if I'm talking about the Supreme Court, that's definitely the Chief Justice of India, said the governor cannot sit on the bill claiming that the House is invalidated on the part of and the adjournment is there with regard to the prorogation. Speaker is within the jurisdiction of the adjourning of the House sine die, or governor is an appointee of the president and is a titular head of the state. He is just a nominal head. किसी भी तरह से बेसिकली अगर पार्ट करे, जो गवर्नर की पावर है वो एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एड और एडवाइस में काम करने के लिए रखी गई है. इट्स नॉट एब्सोल्यूट राइट गिवन टू द गवर्नर. तो गवर्नर के पावर को लेकर के मेंस में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. सो मेक श्योर यू आर थॉरो विद द कंटेंट. नाउ क्या रिकमेंडेशंस दी थी सरकारिया कमीशंस ने, और भी पुंची कमीशंस की कुछ रिकमेंडेशंस है. इफ यू लुक एट द सरकारिया कमीशन, राइट, सरकारिया कमीशन ने स्पेसिफिकली रिकमेंडेशंस देते हुए कहा है दैट गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर इज लिमिटेड टू रिजर्विंग द बिल, राइट. और खास करके अगर प्रेसिडेंट के अगर गवर्नर ने किसी बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रखा है तो उसमें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी अगर पार्ट है तभी वो रख सकते हैं. सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर अंडर आर्टिकल 200, राइट. सो मेक श्योर you check out the details. It further recommends that Parliament should dispose of such bill within a maximum of 6 months. 6 month के अंदर ही उसे पास करने की जरूरत पड़ेगी. तो जो बिल एक्चुअल में स्टेट काउंसिल्स ने या गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के पास आई है उसे 6 मंथ में देना है. In an event, the president withholding the assent should be given communicated to the state government whenever possible. और ज़रूरत हो तो वो कम्युनिकेशन गवर्नर के थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी दी जा सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए पुंची कमीशंस ने भी कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं. They have said that the governor should take decision with respect to bill for its assent within 6 months. यहाँ पे भी जो टाइम फ्रेम है that is for 6 months, right? And these recommendations have not been implemented till date. तो जो भी बिल अगर गवर्नर के पास दी जाती है वो विद इन 6 मंथ उनको अप्रूव करने की जरूरत है.
बट इसकी इम्प्लीमेंटेशंस में अभी भी पूरी तरह से लूप होल्स हैं एंड वी आर नॉट ऑन द फुल जस्ट टू इम्प्लीमेंट दिस पार्ट. Now, balancing the power is definitely what is required, and this is the recommendations and observations also by the Supreme Court. Supreme Court ने कहा है that it is necessary that the governor of the state as well as the chief minister of the state that they are doing a little bit of soul searching. They need to do it, right? To have a proper functioning of the state administration, because इस तरह से क्या होगी, कोई भी bill है, suppose there is any bill that is something not personal to any individual, that bill is एक्चुअली मेंट फॉर द वाइडर पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई गई है. तो किसी भी तरह से अगर बिल को विथ होल्ड की जा रही है तो जनरल पब्लिक के जो बेनिफिट्स हैं उसमें ही एक्चुअली रुकावट आ रही है. द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड प्रोवाइडेड द चीफ मिनिस्टर शैल बी कंसल्टेड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, और ये कहा गया कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है हर एक स्टेट में उसके लिए चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी एक्चुअल में जो राय मशवरा या फिर एडवाइस लेनी चाहिए. दिस आर द रिकमेंडेशंस टू बैलेंस द पावर. The recommendations of the Punchi Commission that governor may be removed through impeachment by the state legislative assembly can also be considered. Now this will act as a balancing power, right? अगर आप conclusion लिख रहे हैं, if you're writing specifically in main examination, if you're writing conclusions, you can definitely write this thing. Now this would also arm the state legislature with power to remove uncooperative governor. अगर कोई गवर्नर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ, देन ही विल बी लाइबल टू बी रिमूव. तो इस तरह से एक बैलेंसिंग पावर रखी जा सकती है. ये पॉइंट्स काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर यू टेक अ नोट ऑफ दिस. Now moving ahead, Indian military personnel are stationed at Maldives. कुछ नई चेंज हुई है गवर्नमेंट में मालदीव्स में, सो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं मालदीव्स को, उन्होंने कहा दैट 77 मिलिट्री पर्सनल्स आर देयर इन मालदीव्स. और जो नई गवर्नमेंट है दे आर रिव्यूइंग मोर देन 100 एग्रीमेंट. दिस इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, राइट. सो इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी की बात की है मालदीवियन गवर्नमेंट ने. नई चेंज हुई गवर्नमेंट वहाँ पे. द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैज असर्टेड कि जो मालदीव्स हैं वो पूरी तरह से फ्री होगी फॉरेन मिलिट्री के प्रेजेंस में. सी इट इज़ देयर पर्सनल चॉइस. आई मीन ये नेशन गवर्नमेंट, वहाँ की जो नेशन है वो उनकी गवर्नेंस की बात है. सो वी कैन नॉट इंटरफेयर ऑन दैट. बट इफ दे वांट कि फ्री होनी चाहिए, बट लुकिंग एट द डिप्लोमेटिक एंगल, लुकिंग एट द बायलैटरल एंगल, इंडिया की काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप रही है मालदीव्सन के साथ. और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो काफ़ी ऐसे टूरिस्ट हैं जो मालदीव्स विजिट करते हैं और मालदीव्स इंडियन आते हैं. So they have seen and they have given the details that there are 24 personnel which is there from the Indian military in the helicopter wing, 25 to manage the Dornier aircraft जो कि Indian Navy से है, 26 managing the second helicopter and 2 are maintaining the part of engineering. These are the actual deployment which is there in the Maldives. This is the official statement coming from the president of the Maldives. उनके जो spokesperson है उन्होंने details दी. Now key maritime neighbor, if you look at Maldives और geopolitically भी देखिए बहुत ही important partners हैं. Maldives is one of India's key maritime neighbor. अगर Indian Ocean region IOR की बात करें वहाँ पे मालदीव्स की काफ़ी significant role है in terms of security and defense. अगर चाइना के बाद basically if you need to counter, Maldives become very important and significant, right? Maldives is one of the biggest beneficiaries of India's neighborhood first policy. अगर NFP की बात करें तो वहाँ पे मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिली इंडिया के. एंड मालदीव्स इज द की मैरीटाइम नेबर पार्टनर इन द इंडियन ओशन रीजन. दिस इज ऑक्यूपाइंग द स्पेशल प्लेस जो इंडिया की सागर इनिशिएटिव है. व्हाट इज सागर? सागर इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन एंड द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो इसके एडवांटेजेस, अगर आप PSIR के स्टूडेंट हैं, मेक श्योर यू चेक आउट द डिटेल्स ऑफ सागर एंड अदर इनिशिएटिव. इंडिया के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो. इंडिया हैज़ बीन प्रोएक्टिवली डूइंग इट. Now moving ahead with the other news, that is the divided opinion on the draft broadcasting bill 2023. Now the proposal which was actually there, और ये news काफ़ी बार repeated रही है because some of the controversy emerging from it, the expert and the legal expert actually have raised concern with regards to implementation क्योंकि certain rights जो है वो abrogate होती है. So let's see what are the part that is actually essentially required to be discussed upon. Now background की अगर बात करें, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बिल है वो रिसेंटली रिलीज की गई थी
और इसे कुछ हद तक जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड वाली बिल है उससे रिलेट करके दिखाया जा रहा है, बिकॉज इट एम्स टू रेगुलेट द पार्ट ऑफ OTT कंटेंट. जितनी भी डिजिटल न्यूज़ है, द डिजिटल न्यूज़ विच इज़ देयर विल बी रेगुलेटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस, द पार्ट ऑफ OTT, डिजिटल मीडिया, DTH, IPH, ये सारी चीज़ों के रेगुलेशंस की बात की है. इस बिल में जो मॉडर्नाइज ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, that is replacing the outdated rules, guidelines will be unfitted for further future and prospective approach. So what are the challenges, what are the concern that has been raised? तो अगर बात करें उससे पहले, let's see what are the things that is actually highlighted through this bill, then we'll see the concern part. तो इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट ने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है जो लीगल फ्रेमवर्क है फॉर द ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर. ये एक ब्रॉड टर्म है जहाँ पे सारे OTT प्लेटफॉर्म भी इंक्लूडेड होंगे. कंटेंट इवेल्युएशन कमिटी बनाई गई है, दिस इज नोन एज CEC, राइट, कंटेंट इवेल्युएशन कमिटी, जो कि इधर करेगी प्रोग्राम फॉर द एडवर्टीजमेंट कोड. देयर विल बी अ ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल नोन एज BAC, राइट, टू रिप्लेस द इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी. और एक्सेसिबल मेजर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ों की प्रोविजंस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 में लाई गई है. Now, what are the concern that has been raised by the expert? सबसे पहले कहना है कि जो ड्राफ्ट है that raised concern with regards to the assurance of selective representation of Indian minorities community, right? This is the one concern that has been highlighted. और दूसरी बात है जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है with the minority communities and portrayed broadcasting potential shaping the dominant narrative. The bill authorized the officers and authority to block the program and the channel which violates certain code and that may foster disharmony, ऐसा कहना है. बट इसकी जो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे दैट व्हाट इज एप्रोप्रिएट, व्हाट इज नॉट एप्रोप्रिएट. सो देयर इज नो wholesome mechanism to decide upon. An expert worry that the government potential to influence the regulatory process will definitely impact the independence of the operating procedures that is there. So there's no SOP and guideline which is mentioned. This is a discretion of the union government. The enhancement of the self-regulations and the introductions of the content evaluations committee even pose the serious threat. So these are some of the concern that has been highlighted by the legal expert, by the stakeholders. Now, moving ahead with other news, that is GTRI. GTRI का मतलब है Global Trade Research Initiative. उन्होंने अपनी व्यूज दी है इंडियन रुपीस के बारे में, and it says that this is not the right time that India should, that INR should be considered as a hard currency. इंडिया को अभी मिडिल इनकम स्टेटस को अचीव करने की जरूरत है. इन लेमन टर्म इफ आई टेल यू, इसमें कोशिश ये की गई है, ये रिकमेंडेशंस दी गई है कि इंडिया अभी अपनी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाए, जो डेवलपिंग नेशंस है उससे और मिडिल इनकम स्टेटस पे अपने आप को स्ट्रेंथन करे, उसके बाद INR को हार्ड करेंसी में रिकॉग्नाइज करने की बात की जाए. दिस वाज बेसिकली दे हैव एक्चुअली कम अप विद देयर ओपिनियन. नाउ दिस बिकम इम्पॉर्टेंट, आपके लिए जानना जरूरी है हार्ड करेंसीज क्या है, किस तरह से ऑपरेट करती है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं. आई टेल यू ऑल द डिटेल्स इन अ व्हाइल. Now, hard currencies basically they refer to a stable and widely accepted currencies. Like जिस तरह से डॉलर है वो एक वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसीज है, ग्लोबल स्टेज पे उसे रिकॉग्निशंस मिली हुई है, सारे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ अ करेंसी रिफ्लेक्ट द परसीव स्टेबिलिटी. जो स्टेबिलिटी की बात की जाए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज देयर विद द टर्म्स ऑफ हार्ड करेंसी. उसके बाद रिलायबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड दैट इशूज अथॉरिटी. तो हर एक कंट्रीज की अपनी बेसिकली करेंसीज होती हैं जिसकी अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी को देखा जाता है. US डॉलर इज द मोस्ट डोमिनेंट हार्ड करेंसी that is often considered as a primary reserve currency. Now it is used as a significant majority for international transactions and benchmark for most of the commodities. Right, now moving ahead with the other details that you need to know is about the hard currencies. कौन सी है? डॉलर, अगर US डॉलर की बात करें, this comprises of 62.16%. आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछे जाएंगे that US डॉलर comprises of 90% of the hard currency. तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा. Make sure UPSC tend to ask this type of question. तो मैं आपको अभी basically मैं giving you a caution on that part so that you can be eliminating the statement well. उसके बाद यूरोज है जो 25.2% के साथ है. पाउंड स्टर्लिंग इज एट 3.83 और उसके बाद जापानीज येन है 0.11%. So they can be also increasing और decreasing order पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं. So make sure you know it well. और अदर करेंसी 5.35% के आसपास है.
Now, recommendations जो दी है global trade research initiatives ने, they basically come up with the detailed analysis part, and they've said that transforming the currency into hard currency is a complex problem. और इसके साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, pivotal factors हैं जो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट व्हाट इंडिया शुड एक्चुअली बी लुकिंग फॉर, इंडिया को अभी एट दिस टाइम क्या प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. सबसे पहले हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करनी है, विच इज़ अगेन क्रूशियल. Then we have to stable our inflation. If you look at the inflation rate post COVID, it is fluctuating between 6.1% to 6.4%, depending upon the part of the CPI rates और inflation जिस तरह से काम कर रही है. हमें consistent growth देनी है, because if you look at the growth, बहुत सारे ऐसे international institutions हैं जिनकी growth forecast variable है, right? We need to have a balance of trend environment in the country. These are the foundation work. ये कुछ ऐसी foundations होंगी जो कि इंडिया को काम करने की ज़रूरत है. A political stability play a critical role in restoring the external entities with the national economic consistency. India will be witnessing Lok Sabha election in 2024. तो definitely एक stable government के बाद कुछ चीज़ों को सोचा जा सकता है depending upon the policies and the working of the government. Now, moving ahead with the editorial for the day that talks about how to manage the stubble burning. दिस इज द थीम फॉर टुडेज डिस्कशन, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने की जरूरत है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर. इसको थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से भी देखेंगे, बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस. आईओएफएस के एग्जाम को कॉमन होने की वजह से यूपीएससी अक्सर एनवायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है. आई टेल यू द डिटेल्स अबाउट दैट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So issues, first we'll see the reason behind the stubble burning. क्या कैसे कारण है, whether the farmers are doing it willingly या उनकी भी कुछ मजबूरी है. The prior initiatives which is there, possible solutions and the way forward or the way ahead. Now stubble burning की बात करें, it's a method है जहाँ पे पेड़ी को रिमूव करने के लिए जो उनके रेसिडुअल्स हैं, जो बचे हुए पेडीज हैं in the field that need to be basically removed out, उनको burn करने के लिए, और जो नई पैडीज उनको लगाने के लिए दैट इज़ द टाइम बिटवीन सितंबर टू नवंबर. एक बहुत कम टाइम मिलती है. इस वजह से स्टबल बर्निंग उनके लिए एक सबसे अल्टरनेटिव ऑप्शन और सबसे किफ़ायती, सबसे चीप ऑप्शन बनती है. द स्टबल बर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑन द फायर ऑफ द स्ट्रॉज लिफ्टिंग आफ्टर द हार्वेस्टेड ऑफ द ग्रैंड लाइक पैडी, वीट एटसेट्रा. राइट. स्टबल बर्निंग एक मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है. स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर रीजन की अगर बात करें, एनसीआर इंक्लूड गाजियाबाद, नोएडा, इवन गुड़गांव, हरियाणा रीजन में भी है ना. ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं, एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड टू दिस. नाउ पैडी हार्वेस्टिंग इज अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो कि कंट्री में डोमिनेंसली की जाती है, क्योंकि राइस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. इसको लेकर के कंसर्न रेस की गई है क्या, कि पैडी की पैदावार को कम करने की ज़रूरत है. वी नीड टू हैव लेस प्रोडक्शन ऑफ पैडी बिकॉज इंडिया हैज़ अ सरप्लस ऑफ राइस. इससे क्या होगा कि इंसेंटिवाइज जो एक्चुअली फार्मर्स ज़्यादा पैडी कर रहे हैं उस वजह से ज़्यादा बर्निंग हो रही है, उसमें थोड़ा रिडक्शन होगी. इट्स अ लॉन्ग टर्म मेजर्स, बट इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड विद सी. अभी तुरंत इसके लिए कंक्लूजन नहीं दे सकते, बट वी हैव टू सी वेदर इट विल वर्क फिजिबली और नॉट. नाउ रीजन बिहाइंड द स्टबल बर्निंग, क्या क्या ऐसे रीजन है स्टबल बर्निंग के. सबसे पहले कारण को अगर देखिए स्टबल बर्निंग के, सो देयर इज अ राइस हार्वेस्टिंग विच इज देयर, राइट. राइस एंड व्हीट हार्वेस्टिंग विच इज डिलेड, and between the harvesting crop season, the next crop season that is there. So सिर्फ और सिर्फ उनके पास 3 weeks की विंडो होती है. क्लोज टू 2 months आप भी ले सकते हैं. 3 weeks, 2 to 3 weeks which is their window which is left after the part of harvest which is there. तो उनको जल्दी करने के लिए स्टबल बर्निंग ये एक ऑप्शन है, और ये बहुत कॉमन है पंजाब में, हरियाणा में, और कुछ रीजन है उत्तर प्रदेश जहाँ पे ये प्रीडोमिनेटली की जाती है. Now crop residue which is there, it is practiced by farmer to prepare the land for the next cultivation, to get earliest cultivation. और cheap इस stubble burning में किसी तरह से labor cost नहीं आती है, they can do of their own. So it's a cheap method, but it is creating a lot more detrimental problems to environment and even to the soil health. Stubble burning is considered as one of the cheapest method to clean the field, as I've told you. And paddy straw has high in silica. Now यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है. सिलिका कंटेंट हाई होती है इसमें. ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इस वजह से ये एनिमल को फीड करने के लिए प्रेफरेबल नहीं होती. नाउ व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली रिजल्टेंट विद द स्टबल बर्निंग. अगर देखें कॉन्सिक्वेंसेज की, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. मेक श्योर यू टेक ईदर स्क्रीनशॉट या फिर आप इसके नोट्स बना लें. वाटर पोल्यूशंस में वाटर कॉन्टेमिनेशन होती है, हार्मफुल इफेक्ट होती है एक्वेटिक एनिमल्स में, और हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ में. एयर पोल्यूशन में 3 kg matters, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर देयर.
सॉइल डिग्रेडेशन में नाइट्रोजन पहले, उसके बाद फास्फोरस और सल्फर से निकलती है। ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशंस बढ़ती हैं, ऑल्टर्ड रेन पैटर्न एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, और बायोडाइवर्सिटी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा लॉस है। जो हैबिटेट है, एनिमल इंसेक्ट्स गेट impacted, fungal bacterial population by the soil will more than harm, right? So these are some of the consequences on various dimensions that include water pollution, air pollution, soil degradation, climate change, and biodiversity loss. Now, prior कुछ इनिशिएटिव्स ली हैं गवर्नमेंट ने, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली विद फुल स्पिरिट, वो से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई। अगर बात करें यूनियन गवर्नमेंट की, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इट। बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल मेजर्स। एक मेजर्स है उसमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक, DSR टेक्निक कहते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा ये एक इन सीटू मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बेसिकली हेल्प नहीं हो पाई है। कुछ और अल्टरनेटिव्स बताए गए हैं इस एडिटोरियल में, वी विल सी टू दैट। सो क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है पॉलिसी लेवल पे? अगर इंटरवेंशन की बात करें, वी नीड टू रीथिंक ऑफ फ्री पावर सप्लाई विच इज़ गिवन, राइट? जो इरीगेशन के लिए फ्री सप्लाई दी जाती है, उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ग्राउंड वाटर की, उस पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दे कैन बी अ मीटर्ड सप्लाई ऑफ पावर, राइट? और उनको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उनके थ्रू पैसे दे सकते हैं, और पैडी कल्टिवेशंस में उसमें डाइवर्सिफिकेशंस आएगी। वो बेसिकली जो फार्मर है, जो उनको DBT के थ्रू पैसे मिलेंगे, वो दूसरे क्रॉप्स को से भी कल्टिवेट करने में यूज़ कर पाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ उनको पावर सब्सिडी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैडी में एक्चुअली लगाते हैं। नाउ क्रिएटिंग मार्केट फॉर द पैडी स्ट्रॉ एंड स्टबल, जो स्टबल बर्निंग है उसको अगर हम यूटिलाइज करें, मोनेटाइज करें, there can be effective market for stubble, like there can be extra effort which involve with harvest, collections, and disposable. The small market of paddy and the solid bales which is already there, productions of biofuels, bio CNG, ethanol, direct fuel, and even the brink lanes, furnace और thermal plants में से utilize की जा सकती है। This can be monetized further, and जिस तरह से burning है वो वापस से रोकी जा सकती है। Now the way ahead is to address the farmer problem, जो पैडी कल्टिवेशंस में प्रॉब्लम है उसके अल्टरनेटिव हमें देखने की ज़रूरत है। राइस, पैडी, ये सारी चीज़ों से हट के कुछ दूसरे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशंस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, और फार्मर को भी हमें मोटिवेट करनी पड़ेगी इसके लिए। द मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सिडाइज सप्लाई ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इन सीटू यूज ऑफ द पैडी stubble can also be helpful in preventing the fire from some areas. So definitely these need to be worked upon, और इस पे काम करके गवर्नमेंट बहुत हद तक एयर पोल्यूशन और स्टबल बर्निंग से रोकी जा सकती है। इवन इथेनॉल ब्लेंडिंग, E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, वो भी जो स्टबल है उससे यूटिलाइज की जा सकती है ना ड्यू कोर्स, चाहे वो शुगर केन हो या और भी कुछ मेथड्स। Now moving ahead with the answers discussion for the yesterday questions, जो सैटरडे के सवाल थे उसके करेक्ट ऑप्शंस और आज के MCQs। For Saturday question, the first question, the correct option is A. मैंने आपसे इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम्स के बारे में पूछा था। Statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, that it is set up as a companies and sole subject discretions to the companies individual of the political parties. और statement 3 भी correct है, that the trust to apply with renewable 3 financial year. So check out for the correct option what you have marked. Now second question में दोनों options correct हैं, that CABM is a part of 555-2030 package and is a policy tool at reducing the carbon emissions. ये questions काफ़ी ज़्यादा relevant होंगे आपके आने वाले upcoming prelims में। Moving ahead with the today's MCQ questions for the day. This is about the Asian Development Bank. The members are from the Asia and Asia Pacific. It does not project with the private sector. Its vote is proportional to the capital subscriptions for the members. To participate in the question answer, what you have to do, you have to just write question number 1 followed by your correct option, that is A, B, C or D, और अपने correct options हमें comment section में ज़रूर बताएं। Second question of the day is the One Station One Program scheme or One Product scheme. It is an initiative by Ministry of Railway. It's provide locally produced sales outlet for indigenous product. So check out for the correct option. आप participate करें, ज़्यादा से ज़्यादा question practice करें। हमारे social media platforms पे भी और सवाल आपको मिल जाएंगे, which will help you to get through the part of contemporary current affairs questions. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about test series, programs, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.